नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी कोई भी जो दो सेल हैं उनके ईएमएफ को कंपेयर करना। किस तरीके से हम करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी उसका डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम अपना प्राइमरी सर्किट में नो चेंज, सेकेंडरी सर्किट में चेंज होगा, और क्या चेंज होगा वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? प्राइमरी सर्किट, जिसमें हमारे दो एंड्स हैं। एक तो कौन सा एंड हो गया? दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड। क्लियर? दिस इज की K1 RH1, it is rheostat and it is key, that terminal is positive and that terminal is negative. Now we can calculate the comparison of two EMF cell. Comparison of two EMF cell. So we can show two cell here. First is E1 and second is E2. Which is E2 and which is E1. Now we put here 2way key. This is 2-way key. Now this is one terminal, second terminal and third terminal. Second terminal is connected with galvanometer and now it connected to jockey with the potentiometer wire. Clear? After that we calculate the comparison of two EMF cell. Comparison of two EMF cell. So there is two step is very important. Step first is what is step first? Step first is we can put the dot between 1 and 2. Put the dot between 1 and 2. So we can write here, first of all we put dot between 1 and 2 terminal. 1 and 2 terminal. Now with the help of jockey we can calculate balancing length L1, and now potential gradient Pg. Potential gradient is x, so we can, what is the value of x when this is the balancing length L. For E1 cell it is L1, for E2 cell it become L2. So now for E1 cell which is L1, so we can write here x equals to E1 upon L1 because there is balancing length is L1, so we can write x equals to E1 upon L1. After that it becomes E1 equals to XL1, which is equation first. Now we here calculate the comparison of two EMF cell. So step first we use only first cell which is E1. Now for second step we can use cell E2. So now insert the dot between 1 and 2 and eject the dot between 1 and 2 and insert between 2 and 3 terminal of two-way key.
नाउ with the help of jockey we with the help of jockey we can calculate balancing length L2 and potential gradient. What is the potential gradient? X equals to E2 upon L2, because there is balancing length is L2 for E2 cell and balancing length L1 for E1 cell. So here we have most important thing कि what is the balancing length for E1 for cell E1 and for cell E2, and now there is potential gradient for both is equal. Clear? So now from first and second equation E1, no, it is not second equation. Now it becomes E2 equals to XL2, which is equation number 2. E1 equals to XL1 upon E2 equals to XL2. So here equation first divided by equation second. So what we receive from this equation, E1 upon E2 equals to L1 upon L2. We can calculate any EMF of the cell from this equation. If we have given three equation, yani three quantities in that equation, now we can calculate four quantities. Just like if you have E2, L1 and L2, now we can calculate E1. If we have to E1, L1, L2, so we can calculate E2 from this equation. If we have L1, not have L2 and have E1 and E2, so we can calculate L2 from this equation. So we can calculate any one quantities from this formula. So it is the comparison of EMF cells. मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो दो सेलों के EMF, टू सेल्स का जो EMF है उसको हमें कंपैरिजन करना था, और इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम उस कंपैरिजन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि सर जो E1 और E2 है वो कौन कौन से सेल हो सकते हैं. डेफिनेटली अगर हम E1 सेल की बात करें तो वो अपना लेक्लांसी हो सकता है या डेनियल हो सकता है, ये भी लेक्लांसी डेनियल हो सकता है. अगर दोनों की बात करें, अगर आप यहाँ पे लेक्लांसी लगा दो तो यहाँ डेनियल लगा दो, यहाँ डेनियल लगाते हैं तो यहाँ लेक्लांसी लगा सकते हो, और दोनों के जो EMF है उसको कंपेयर कर सकते हो with the help of this formula. Clear? अब कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू EMF सेल, तो कंपैरिजन ही होता है रेशियो. जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन बोला जाता है. रेशियो को ही क्या बोला जाता है? कंपैरिजन बोला जाता है. क्लियर? सिंपल, समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की. जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है उसके लिए अगर हम बात करें तो वो है आपकी मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस. तो क्या होगा वहां से उसको देखना है. बहुत इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान हो जाएगा. ठीक है भाई, तो हम बात करने वाले हैं आज मेजरमेंट ऑफ थर्ड एप्लीकेशन है जो आपकी थर्ड एप्लीकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस. सबसे पहले वही कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम, ये आपका डायग्राम हो गया K1
और दूसरी हम बात करें यहाँ पर क्या लगा देते हैं RH यानी रियोस्टेट, और इसको हमने किस साइड कर दिया, एक कोई ए बी वायर है जिससे हमने जो कर दिया यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये हमारा ए रहा और दूसरा हमारा क्या रहा बी। ए और बी की हेल्प से ये अपना हो गया EP। और यहाँ हम बात करें तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक तो ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, ये अपना अननोन रेजिस्टेंस है, और अननोन रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस के साथ में इस तरीके से हम यहाँ पर एक टू वे की का यूज करेंगे। इसका टू वे की लेबोरेटरी के अंदर आप इसको देख लोगे कि टू वे की होती है। यहाँ गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को जॉकी की हेल्प से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक RH लगा देंगे, इसको RH2 बोल देंगे। H1 ऊपर लगा हुआ है तो ये क्या हो गया RH2 हो गया, इसको क्या बोल देंगे RH2। और इसके हेल्प से यहाँ पर हम एक सेल लगा देंगे बैटरी का, इसको हम E बोल दिया हमने, या फिर अपन यहाँ पे इसको ES भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। ये हमारा सिंपल डायग्राम है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, यानी स्मॉल r को कैलकुलेट करना है। और स्मॉल r क्या है यहाँ पर, स्मॉल रेजिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, स्मॉल r है, ठीक है। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर सेल की रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर वायर को सीरीज में लगा दिया, सारा सीरीज में दिख रहा है। सेकेंडरी सर्किट में हमने नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा, उसके साथ में हमने एक रियोस्टेट और ES को भी सीरीज में जोड़ दिया। रियोस्टेट से क्या करते हैं, करंट कंट्रोल द करंट, ठीक है। तो अब हमारा अब बात करते हैं वर्किंग के लिए। वर्किंग के लिए भी वही दो स्टेप है हमारी, जैसे हमने लास्ट में स्टडी की थी। जो हमारी स्टेप फर्स्ट की हम बात करें तो स्टेप जो फर्स्ट है उसके लिए हम इजीली बात करें तो हम करेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी की है जो डॉट है तो लिख देंगे इंसर्ट डॉट बिटवीन 1 and 2 टर्मिनल। किसके बीच में लगा दिया, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में लगा दिया। देन with the help of जो कि we can calculate balancing length L1, ठीक है। यहाँ पर L1 कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हमने L1 कैलकुलेट की। सो नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो जब हम इसके लिए बात कर रहे थे तो यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से v था। फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो लगाया तो यहाँ पर सिर्फ r काम करेगा, स्मॉल r तो नहीं करने वाला। स्मॉल r तो कब करता है, जब हम इसके बीच में करते हैं, जब दोनों करते हैं। यहाँ पर r करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो क्या हो जाएगा v, और अपन लेंथ क्या है L1, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अगर आगे बढ़ा तो v इक्वल्स टू कर लेते हैं x L1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप हमारी, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, इस की को यहाँ से हटाने के बाद किस में लगाते हैं, दोनों के बीच में। इसका मतलब अब यहाँ से गायब हो जाएगी। वैसे दोनों के बीच में आपको शो नहीं करना है ना, तो आप तो लेकिन अभी किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। नाउ डॉट इजेक्ट फ्रॉम, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, इजेक्ट फ्रॉम 2 and 3 टर्मिनल एंड insert between सॉरी हाँ 1 और 2 के बीच में तो नहीं हटाना है और 2 and 3 के बीच में क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्लियर। सो विद द हेल्प ऑफ जॉकी, बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जानी भाई, L2। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये दोनों यूज होंगे तो यहाँ से अपन एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे, देखो हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है IR, क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, अगर इसके मैं बात करूं तो करंट क्या होगी I, और I करंट होगी तो क्या हो जाएगी IR। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि IR इक्वल्स टू XL1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V डैश अपॉन L2। अब क्वेश्चन V डैश क्यों लिखा भाई, इसमें दोनों के अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर ही पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर V के बजाय क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, तो V डैश अपॉन L2। क्लियर। यहाँ पे लिख दिया ना अपने
वेरिएशन लेंथ L2, तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या V डैश इक्वल्स टू x L2। अब यहाँ पे जो V डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, I तो वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे दो हो गए, दोनों सीरीज में है तो R प्लस स्मॉल r, दोनों सीरीज में है तो R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी I R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू x L2, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमारी इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई और इक्वेशन सेकंड भी आ गई। इक्वेशन फर्स्ट भी अपन ने लिख ली है और इक्वेशन सेकंड भी लिख ली है, बस अब तो ये लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकलेगा, देखो I R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू x L2 अपॉन I कैपिटल R इक्वल्स टू x L1। तो x x कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पर R अपॉन R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। ये बचेगा, मैंने दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। ये सॉल्व करें तो 1 आ गया और 1 को इधर ले जाएंगे तो अपन क्या बचेगा, R और R को ले जाओ L2 अपॉन L1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R। तो R इक्वल्स टू निकालो यहाँ पर, अगर इसे हम L1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 और R, ये क्या आ गया हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस। इसको क्या निकालते हैं, ये स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने क्या कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना था यहाँ पर और कैलकुलेट कर लिया स्मॉल रेजिस्टेंस। कुछ नहीं करना, पहले इसमें लगाना तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देखो मैं तो इसके लिए इक्वेशन क्या आती है, V I R, सीधे कर लो ना, I R इक्वल्स टू x L1। और इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या आती है, मैं दोनों को बता रहा हूँ, I R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू x L2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा, इतना सा है बस। देखो भाई अगर ये टफ लगता है ना, इन दोनों से भी इक्वेशन आ रही है, इन दोनों से इक्वेशन आ रही है, दोनों को अपन में डिवाइड कर दो, स्मॉल r की वैल्यू निकाल दोगे आप, ठीक है। सिंपल सा था हमारा सेकंड एप्लीकेशन, इसी के साथ ओवर होता है। अब हम बात करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। अगला जो अपना टॉपिक है वो है, एप्लीकेशन का नहीं है, अगला नया टॉपिक है, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो हम पढ़ने वाले हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर क्या होता है, कोई भी जो वोल्टमीटर है उसका कैलिब्रेट करना, उसको कैलिब्रेट करना, ठीक क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है भाई। हम इजीली बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से क्या होता है, हम वो देखेंगे। ये BRATION है ना, CLIBRATION, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। इस कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर क्या होता है। देखो भाई, जो वोल्टमीटर आपके लेबोरेटरी के अंदर आते हैं या फिर आपके जो घरों के अंदर कोई मोटर वगैरह लगी हो वहां पर वोल्टमीटर शो होता है, उस वोल्टमीटर के अंदर कुछ एरर हो सकती है, यस और नो, हो सकती है। अब एक्चुअल में जो एरर को मतलब कि निकालते हैं, यानी एरर नहीं हो, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू हम पता करें, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियोमीटर की। अब वोल्टमीटर में एरर है, पोटेंशियोमीटर में एरर नहीं है, तो पोटेंशियोमीटर से उस वैल्यू को चेक करेंगे और वोल्टमीटर से उस वैल्यू की उस पोटेंशियल को चेक करेंगे, दोनों की डिफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब ये है, पोटेंशियोमीटर से जब हम वैल्यू रखेंगे और वोल्टमीटर से जब देखो दोनों कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ एरर आएगा ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, यानी कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेट आप समझ गए ना, आप उसी को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपको नोट्स में जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले तो प्राइमरी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इतने सारे डायग्राम बना दिए। अब मेरे हिसाब से किसी के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर प्राइमरी का कोई डाउट होता है क्या, प्राइमरी सर्किट के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, यानी ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हमारा बी एंड हो गया, ये हमारा ए एंड हो गया और यहाँ से इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। ध्यान रखना, ए एंड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है और बी एंड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पर होता है। इसको क्या बोल दिया, इसको RH1 बोल दिया, ये अपना EP हो गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने स्टैंडर्ड सेल हो गया। और दूसरा हम यहाँ पर एक R लगा देंगे, क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके पैरेलली हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है।
और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे और एक अपना 0 हो गया, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे और इस तरीके से ये हमारा क्या हो गई, जोकी हो गई। ठीक है, ये 1 2 और ये 3 टर्मिनल। ठीक है भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रियोस्टेट लगा देंगे और रियोस्टेट क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक की लगा देंगे, साथ में एक बैटरी लगा देंगे। ध्यान रखना पॉजिटिव इधर ही होना चाहिए इस बैटरी का। ठीक है, ये पॉजिटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो जाएगी। ये हमारा K2 हो गया, ये हमारा RH2 हो गया। ठीक है, इसका वोल्टमीटर हो गया। समझ आ गया, इसको बोल देंगे हम ES, तो ये हो जाएगा हमारा कोई भी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वो स्टेप फर्स्ट वर्किंग में। अब आप करोगे सर कंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने आरबी लगाया है, आरबी के पैरेलल वोल्टमीटर लगाया है। इसके इन दोनों की सीरीज में, मतलब ये तो आपस में पैरेलल है, लेकिन इस कंटेंट की सीरीज में एक RH है, की है और एक स्टेप है। ठीक है, इसके टर्मिनल को 3 से ये 2 वे की है, इसको अपन बात करें तो ये क्या है, 2 वे की है। हमने एक यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल का यूज किया है। पहले इसका हमें करना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम 1 और 2 के बीच में जब इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हम 2 और 3 के बीच में करेंगे तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वोल्टमीटर की रीडिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमें सबसे पहले हमारा ये प्राथमिक करनी है, सेकेंडरी में हमने ये चीज करके ऐड कर दिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लेना नोट्स लिखना है तो। अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम के अंदर आपको कैरियर कोचिंग लाइन सर्च करना है, ग्रुप मिलेगा, उसको नीचे आके ज्वाइन कर देना, वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर वाइज नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लिखो तो लिखो, नहीं अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी लाइव पढ़ सकते हो। और अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप अपने नोट्स बना लेना वहाँ से। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किस तरह से वहाँ से नोट्स देखो और समझो यहाँ से। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग के लिए सबसे पहले क्या है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है अपने को, पुट द डॉट between 1 and 2 टर्मिनल। सबसे पहले तो हम 1 और 2 टर्मिनल के अंदर डॉट को पुट करेंगे। देन विद द हेल्प ऑफ जो कि कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ L नॉट। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ES अपॉन L नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एक लेंथ निकलेगी जिसको अपन L बोलते हैं, वैसे तो इसको L नॉट बोला है। फर्स्ट के लिए इसने क्या बोला है, L नॉट बोला है। सेकंड के लिए अपन कुछ और बोल देंगे। ठीक है, अब स्टेप सेकंड यहाँ पे लिख देना, इट्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखो, नाउ इजेक्ट द डॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड insert between 2 and 3. Then with the help of jockey balancing length is L and reading of voltmeter is V. When 1 ohm resistance eject from RB, इससे निकालते तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो गई, V, एंड पोटेंशियोमीटर रीडिंग V डैश।
ठीक है, यानी या तो अपन अगर अपन कहते हैं कि सर यहाँ से जो पोटेंशियोमीटर है उसकी रीडिंग अपन V लेते हैं, किसकी, पोटेंशियोमीटर की, तो अपन V ले सकते हैं। वैसे इतना हमें पता है कि जो वोल्टमीटर का V भी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से रीडिंग क्या कर लेंगे, V डैश कैलकुलेट करेंगे, तो लिख देना फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या होता है, V डैश अपॉन L, यानी क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल्स टू XL, क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल्स टू XL। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ से V डैश कैलकुलेट करना है, तो लिख देना नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो V डैश इक्वल्स टू x की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी, ES अपॉन L नॉट और मल्टीप्लाई बाय L, यानी V डैश इक्वल्स टू L अपॉन L नॉट और मल्टीप्लाई बाय ES, ये क्या आ जाएगी आपकी V डैश की वैल्यू हो जाएगी। और पोटेंशियोमीटर की जो इसकी वैल्यू तो V, अब दोनों का अगर हमें निकालना है, एरर निकालना है, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, del V इक्वल्स टू V माइनस V डैश। अब V की वैल्यू और V डैश की वैल्यू को एरर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी, एरर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्लियर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। कुछ नहीं करना, डायग्राम का प्राइमरी सर्किट, सर्किट सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में एक हमें स्टैंडर्ड सेल यूज करना है, दूसरे में हमें RB के पैरेलली V लगाना है, RB से 1 ओम निकालोगे तो V भी वैल्यू शो करेगा और पोटेंशियोमीटर भी वैल्यू शो करेगा, दोनों की रीडिंग को पढ़ लेना, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एरर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, क्या बोला जाता है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। समझ आ गया, इजी सा है। अगर इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करें कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर के लिए, तो ग्राफ अपना इस तरीके से होता है, ये अपना क्या हो जाएगा, ग्राफ, इसको बोल देना, लिख देना इसको कि ग्राफ ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, क्लियर, जिसमें ये हो जाएगा अपना V, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा अपना del V, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस में दोनों ही वैल्यूज आपको रिसीव हो सकती है, ठीक है। अपना आता है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर की जगह एमीटर आ जाएगा, क्या जाएगा, एमीटर। तो एमीटर में देखो कितना सा चेंज है। अगला जो टॉपिक अपना वो है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। एमीटर में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को हटाना है और यहाँ पर एक तो लगाना है 1 ओम की कोइल, 1 ओम कोइल लग गया, और इसके साथ में यहाँ पर लगाना है एमीटर, और बस कोई चेंज नहीं करना, प्लस माइनस और ये 1 ओम, और कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहना है। ये यहाँ से बदल जाएगा आपका, और यहाँ पे ये ग्राफ भी आपका बदल जाएगा, और यहाँ से देखो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड में चेंज आएगा, यहाँ भी कोई 1 2 चेंज नहीं आएगा, जो कि बैलेंसिंग लेंथ इज L एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर के बजाय यहाँ पर क्या जाएगा, एमीटर, क्या जाएगा, एमीटर इज V, तो यहाँ पर एमीटर रीडिंग क्या जाएंगे, यहाँ पर AI लिख देंगे, व्हेन 1 ओम रेजिस्टेंस, ये यहाँ से हटा दो, ये हट जाएगा बस, ठीक है। अब देखो यहाँ रीडिंग ऑफ एमीटर एंड करंट passing through 1 ohm, then voltage, तो यहाँ से V डैश इक्वल्स टू क्या निकलेगा, बोलो, V डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, XL2, ये आएगा ना, XL2। अब यहाँ देखो V डैश इक्वल्स टू क्या है, IR, R अपने को पता है यहाँ पे क्या है, 1 ओम, तो यहाँ से V डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I, क्या हो जाएगा, I, तो यहाँ से अपन बोल देंगे I इक्वल्स टू XL2, इक्वेशन नंबर 2, क्या बोल देंगे, I इक्वल्स टू XL2, क्या बोल देंगे, I इक्वल्स टू XL2, क्या बोल देंगे, I इक्वल्स टू XL2, क्लियर, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से I इक्वल्स टू XL2 यानी मैं दोबारा लिख दूं तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू XL2, इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बस ये बोलना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, I इक्वल्स टू x की वैल्यू रखो, ES अपॉन L नॉट और L2, L2 यहाँ पे L2 देखे नहीं अपन ने, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ L है, L2 है ही नहीं, तो यहाँ पर ओनली XL आएगा, क्या आएगा, XL आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया,
XL, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L अपॉन L नॉट और ES। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ अपने को डेल I निकालना है, तो क्या लिख देगा I इक्वल्स टू I डैश, ठीक है। इसके लिए जो अपना ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से दिखा देना, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ। ये तो किसकी वैल्यू शो कर रहा है I की, और ये किसकी वैल्यू शो करेगा डेल I की, ठीक है। ये चीज अपना क्लियर हो गया। तो हमें सिर्फ एमीटर के कैलिब्रेशन में ये करना है कि यहाँ पर एमीटर बदलना है, यहाँ 1 ओम लगा देना है और बाकी कोई चेंज नहीं करना है। वो की वही ग्राफ है अपना, वो की वही प्राइमरी सेकेंडरी, वही सेकेंडरी में चेंज था जो फर्स्ट अपना कोर्स से वो चेंज नहीं होगा, सेकंड कोर्स में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर वीडेस निकालेंगे, लेकिन वीडेस किसके बराबर होता है IR के बराबर। R हमें 1 ओम दे रखा है, 1 ओम यहाँ पे फिक्स है, 1 ओम चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने R इक्वल्स टू 1 रखा। तो यहाँ से हो गया वीडेस इक्वल्स टू I, तो वीडेस इक्वल्स टू I पुट कर दिया, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया XL। अब यहाँ पर अपन x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये सब L नॉट और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो यह भी आपको हो जाता है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। साथ में आपका चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पे खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी है इन टॉपिक्स को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं नया वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बस आप लगातार अपने मन को बनाए रखो और यहाँ पे जितना भी आपको टाइम मिलता है आप स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे। आपदा को अवसर में बदलना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।